Now, in our learning of web hosting and types of web host, some technologies which give us support in it. Okay, let's understand that also. What the behind the scene technologies are and how they are working. Like we have email technology, and let's understand what is web email. Web email are the web-based email accounts that are usually free accounts that operate from a website, like Hotmail, Gmail. Webmails allows the user to access their emails as long as they have access to the internet connection and a web browser. This means that the user cannot read an old mail or draft new mail offline. Okay, you need this connection, internet connection and web browser. And what is POP3? POP3 is the oldest internet message access protocol. It was designed to support offline by local email processing. Email is Post Office Protocol 3. Actually, it is full form is. Email is delivered to the mail server and remote email client periodically download the email from the server to the user computer. Okay. Once the messages are delivered, they are deleted from the mail server, although users can configure the email client to leave a copy of email in their mail servers. POP3 email accounts requires the email client to send and receive emails. Common email clients include Netscape Navigator, Outlook Express, Mozilla Thunderbird, OS X Mail. Okay. When you check your email using an email client, it makes a connection to your mail server and downloads your emails on your computer. Okay. Note that POP3 handles mail access or mail retrieval only. Email sending is handled by SMTP. POP3 क्या क्या हैंडल करता है? मेल का एक्सेस करना और मेल का रिट्रीवल करना. बाकी ईमेल की जो सेंडिंग है वो SMTP के थ्रू हो रही है. What is the advantage of POP3? All emails are downloaded to your computer. You can read your emails without being logged into the internet. Okay. Opening attachment is easy and quick. File already downloaded, so to your computer. It frees up a storage space on your mail web server. There is not a maximum size of mail box. आपने अगर आउटलुक को इंस्टॉल अगर डिप्लॉय कर लिया तो आउटलुक क्या करेगा? आपके जितनी मेल्स आते रहेंगे उनको अपने अंदर सेव कर लेगा. मान लीजिए आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं भी है तो भी आप उसको पढ़ सकते हैं. ओके. और सेंडिंग करने की जो प्रॉपर्टी है वो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल करता है. अच्छा, POP3 के opening attachment is easy and quick. Sometimes a bit too easy and quick. Okay. तो यही है. तो इसमें क्या होता है कि दिक्कत क्या होती है कि अगर हम आउटलुक किसी में कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो हमको बार-बार अपने ही सिस्टम पर बैठ के उसको मैनेज करना होता है. तो ठीक है, ये भी अब आजकल एडवांसमेंट आ गई है कि आप अपने सिस्टम को भी रिमोट पे लेके काम कर सकते हैं. अब POP3 तो ये काम करता है. जब मेल भेजना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं SMTP. SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. It handles the sending of mails. The ability to support email service includes two critical functions, SMTP or POP3. Together they allow you to send outgoing mails and retrieve incoming mail respectively. What is SMTP? Basically, SMTP servers performs two things. It verifies anyone attempt to send outgoing email through SMTP. दूसरा, sends the outgoing mail and delivers sends the message back to the sender. If you're using an email client, you need to configure the SMTP server settings so that you can send outgoing email. Okay. Some companies do not offer SMTP service as they can be difficult to maintain. Now, nowadays everybody wants to build a website, and we understand, no, but everybody is not aware about the coding. Now, with the help of the CMS platform, content management system platform, we can create our website with the website tools available there, and having a template out there, I can build my website with my own image and chosen from the copyright-free images. That is what thing is. That is what the thing is. So we basically what is webmail? We understand what is webmail, what technologies email do, the POP3 and SMTP, and let's understand if
If we send the email to the non-existent email address which is not available, what will happen? आप भेजते हो ईमेल और ईमेल एड्रेस गलत हो जाता है तो क्या होता है? बाउंस बैक होके आपके पास ही आ जाता है. This is not, this quality is known as the catch-all alliance. So this is the thing. Sometimes it is the most of the thing when catch-all alliance become problematic in long term. Sometimes spammers used to carry this thing. So the spammer part is managed through by categorizing those emails in the spam and have the technology over here. Now we understand we have a design for the website. We have a designing technology like HTML and PHP. Let's understand. We have gone through this. What is HTML? What is PHP? What is ASP? Let's go on to three. What is webmaster? Webmaster is the administrator of a website. See, as we came across in the e-commerce zone, that the person who is handling the purchasing, like, see, we have a big bazaar in our place, big bazaar in Lucknow, big bazaar in and many other places. So, big bazaar, that person who is reading those barcode, having a different set of display, and when the one person who is managing the display, who is managing all those display in the back end as the administrator, is having a display, having a different functionality altogether. This whole thing is take care by the webmaster. Webmaster is the administrator of a website. Generally, a webmaster responsibility includes register and maintain the website domain name. Okay? Design the website or supervise page designers and programmers. Monitor the size of site to ensure allowed bandwidth and disk space is not exceeded. Plan future code requirements and limitations of the website. With that formulation, कि कितने लोग हमारे वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, कितने पेज विजिट कर रहे हैं, वो पेज कितने केबी का है, चाहे एमबी का है, उसके बाद 30 दिन में हमको कितना बैंडविड्थ मिल रहा है. तो वो जो बैंडविड्थ की कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से प्लान करना है कि क्या हमको अपने जो हमने सर्वर पे होस्ट किया, उस होस्ट पे हमको और स्पेस चाहिए या नहीं चाहिए. ठीक है. अभी एक चीज होती है वेब डिजाइनर और वेब प्रोग्रामर. Web designer is the most concerned with the visual and aesthetic aspect of the website. They work with color, font, image, layout. ठीक है. फिर अभी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट क्या है? वेब डिजाइनिंग. Okay. So in the web designing, actually, we are mainly focused towards the visual aspect, technical aspect of the color, fonts. Color, fonts, layouts, how we done. We have to understand these concepts in our CSS and how those CSS, how the structure is done with the HTML. How do we think able to manage those things, color, fonts, images, layouts with the help of the CSS, and how JavaScript help with this scripting capability can manage all this coloring with the available technologies in coordination with the available technology of the HTML and CSS. Let's move. The web programmer helps you build your website. They deal with the coding aspect of the website. Their primary concern is the construction and functionality of the website. When choosing a web designer or web programmer, make sure to check their online code. Okay. You say that whenever you go for the website, go for something better, someone better. अब उस वेबसाइट में साउंड भी होगा, ग्राफिक्स भी होगा, वीडियो भी होगा, एनिमेशन भी होगा. तो ये चीज हमको डिफाइन करता है कि इतना हैवी ना बना दे कि वेबसाइट लोड ही ना हो. तो स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट हमने दिमाग में रखना होता है. So streaming is done from the server where your website is hosted. Streaming sends audio-visual files to the user without downloading the information from the user computer. It does not allow the user to save the files on the computer. Streaming कभी भी स्ट्रीमिंग जो होती है उससे आपके सिस्टम पे फाइल डाउनलोड नहीं होती है. POP3 अगर आप यूज करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यूज करते हैं तो आपके सिस्टम पे वो डेटा रहता है, लेकिन स्ट्रीमिंग में वो डेटा नहीं रहता.
वो आपको दिखाया जाएगा, आपने देखा, काम खत्म, आगे बढ़िए। तो अगर आपको वो चाहिए होता है तो आप अपलोड करना पड़ता है, और जो वीडियो वाइज सर्वर पे क्रिएट डाउनलोड लिंक ऑन योर वेबसाइट। अब आप आते हैं कि एक वेबसाइट के बारे में आपको कुछ पता चल रहा होगा कि वेबसाइट कैसे फ्लो कर रहा है। अब हमको ये पता लगाना है कि जी एक वेबसाइट में कैसे हम अपना वेबसाइट का नाम इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था पिछली बार क्लास में कि भाई मैंने sachi.com को रजिस्टर कराया, तो वो जो सच्ची है, sachi.com वो अवेलेबल था, उसको हम रजिस्टर कर सकते थे क्योंकि हमारे पास वो डोमेन नेम अवेलेबल है। और मैंने ये भी आपको समझाया कि वो डोमेन नेम कैसे आईपी में चेंज होता है, और आईपी में क्या होता है कि आईपी क्या होता है, एड्रेस का कंस्ट्रेंट होता है जिसमें कलर, कंट्री कोड और कंट्री में कहाँ उसको शो करना है, ये सब वहाँ पे पता चलता है। लेट्स तो वेबसाइट बनाने का मेजर फंक्शनैलिटी होता है, अगर बिजनेस के लिए बना रहे तो भाई हमारा कस्टमर डोमेन बढ़े, ओके। और उसको फिर कस्टमर डोमेन बढ़े तो एक ही तरीके की बहुत सारी चीजें हैं, तो हम ऐसा कीवर्ड्स यूज करते हैं जो कीवर्ड हमें मदद करती है उसको इनहेंस करने में। तो यही जो कीवर्ड का मेंटेनेंस है, इसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं, और ये को आपकी सर्च सर्च एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं। तो जो ये सर्च एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं जो हमारे वेबसाइट के रैंकिंग को अप करती हैं, टू रैंकिंग, वेबसाइट की रैंकिंग करने के लिए बड़े सारे एल्गोरिथम्स हैं जो मैनेज कराते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम डोमेन नेम की रजिस्ट्री करते हैं। तो डोमेन नेम की रजिस्ट्री करने के लिए वेरियस तरीके के हमारे पास डोमेन नेम सर्विस अवेलेबल होते हैं। जैसे टीएलडी, टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन जो होता है वो जो डोमेन डॉट लगाने के बाद आप राइट में लिखते हैं उसी को हम टीएलडी कहते हैं। अब ये जो टीएलडी है ये बहुत सारे टाइप के होता है। जैसे जेनरिक टीएलडी, जेनरिक टॉप लेवल डोमेन, जैसे डॉट कॉम हुआ, कॉमर्शियल, डॉट ऑर्गेनाइजेशन, डॉट नेट, डॉट ईडीयू, डॉट मिलिट्री, डॉट जीओवी, डॉट इन। इंट मतलब ट्रीटी के लिए है यहाँ पर। अब एक होता है जेनरिक, फिर दूसरा आता है अनस्पॉन्सर्ड, डॉट इन्फो, इंफॉर्मेशनल साइट है, डॉट नेम, फैमिलीज इंडिविजुअल्स की है, डॉट बिच, बिजनेस के लिए, डॉट मूवी, जो मोबाइल डिवाइसेस बना रहे हैं उनके लिए है, डॉट ट्रैवल, रिजर्व वाटर ट्रैवल एजेंट्स, एयरलाइन बिजनेस में है। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कंट्री कोड के हिसाब से चलते हैं, डॉट सी है कनाडा के लिए, डॉट यूके यूके के लिए, डॉट एफ आर फ्रांस के लिए। हर कंट्री का अपना एक डोमेन है। इसी चक्कर में एक है कंट्री टीवी, उसके पास डॉट टीवी है, और उसी डॉट टीवी के डोमेन के वजह से ही उसकी इकॉनमी चलती है, ठीक है। डॉट टीवी, डॉट टीवी डोमेन। एक कंट्री है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। एक कंट्री है टुवालू, ठीक है। टुवालू जो है अफ्रीकन कंट्री है, और इसका पूरा क्योंकि इसका डॉट टीवी डोमेन इसके पास है, जैसे डॉट इन इंडिया के पास है, तो इसकी वजह से ये लाइसेंस देता है डॉट टीवी का, और इसको यूएस डॉलर 50 मिलियन तक का मार्केटिंग राइट्स मिलता था, ठीक है। तो ये पूरा गवर्नमेंट ही इस पे काम करती है कि उसके पास डोमेन राइट है डॉट टीवी का, तो वो मैनेज करती है इसको। इसको पढ़िए, केस स्टडी बहुत अच्छी है कि हाउ टुवालू कंट्री इकोनॉमिक्स वर्क्स अंडर द टॉप टीवी डोमेन। कंट्री का नाम है टुवालू। इसको बहुत अच्छा ये केस स्टडी है। चलिए अभी इस तरह से आप इसको पढ़ लेना, मतलब इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आप इसको पढ़िएगा कि एक डोमेन नेम सर्विस से कितना फायदा हो सकता है किसी इकोनॉमी को, ओके।
तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब आप देखिए, तो ये था कि आप कैसे टीएलडी करते हैं, टॉप लेवल डोमेन बनाते हैं। अब देखिए, जब आप कोई पता चले कि इतने डोमेन अवेलेबल हैं, तो आपको अपने जो नाम है, जैसे सच्ची.com, सच्ची.org, सच्ची.info, बेस्ट सच्ची.info, मान लीजिए अपनी फैमिली का तो तो वो उसको हमको रजिस्टर करना होगा। वो जो रजिस्ट्री है उसके लिए हमको कोई डोमेन पे जाना, डोमेन नेम खरीदना होगा सर्वर पे। और उस कैसे करेंगे, हम एक परचेज करेंगे डोमेन नेम, ठीक है। और किसी हमारे वेंडर से, जैसे यहाँ पे जो वेंडर्स हैं वो हैं ये देखिए, ये आपके बिग रॉक हैं, ठीक है, ये बिग रॉक साहब हैं, ये डोमेन खरीदवाते हैं। ये हमारे साथ हॉस्टगेटर हैं, ऐसे ही बहुत सारे हैं, ये तो आपको भेज देंगे कैसे। ठीक, तो ऐसे ये सब वेबसाइट्स हैं जो हमको मदद करती हैं चीज़ों को समझना, चीज़ों को हमारे 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 डोमेन नेम को किसी पर्टिकुलर टीएलडी के साथ अटैच करके उसको मार्केट में फ्लो करने के लिए। तो डोमेन नेम की रजिस्ट्री और कैसे होता है भाई, उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास ICANN है, जो हमारे डोमेन को मैनेज करती है पूरी। ओके, ICANN, ओके, ये जो ICANN है, यही हमारे जो इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स है, यही हमारे पूरे डोमेन को मैनेज करती है। इसका मोटो है वन वर्ल्ड वन इंटरनेट, ओके, वन वर्ल्ड वन इंटरनेट को मैनेज करती है। ठीक, आगे बढ़िए। तो उसको मैनेज करने के लिए वो जो ICANN के कंडीशंस के अंडर को अंडर ICANN की कंडीशन के अंडर में ये सब बिग रॉक, चाहे बिग डैडी, ये होस्ट गेटर, ये सब काम करते हैं आपस में, उन्हीं उसी फॉर्मुलेशन। Domain name registrant is the organization of individual registration domain. When you submit your application, domain will become the domain name registrant. A registrar is the company that takes the registration request and reserves your domain for you at the main registry. During the domain name registration process, you will be asked to provide the registrar with contact and technical information. The registrar will then submit information sent to the directory, also known as the registry. The registry enters your information into the database so that the computers of the internet can look up the necessary information to the और ये पूरा मैनेजमेंट जो होता है ICANN के रूल्स एंड पॉलिसी के अंडर में होता है, ठीक है। डोमेन नेम की रजिस्ट्री और प्राइवेसी कैसी होती है भाई, जो रजिस्ट्री है वो कैसे आप मैनेज करते हैं। डोमेन नेम के रजिस्ट्री के लिए तो रजिस्ट्रेंट होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक। आप आगे कैसे कैसे चीजें समझें। तो आप फिर क्या करते हैं, अपने डोमेन नेम के लिए ऑर्डरिंग करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि that this service allows a reserved domain name in the event that name is at available to the public। जैसे सच्ची.com है, ये at available to public, ठीक है। तो उसके लिए हम इसके इंडोर्समेंट करेंगे। फिर आता है कि डोमेन नेम्स का कॉपीराइट हुई। अब आपने एक बार डोमेन नेम बना दी, क्योंकि आप, और तो इसका क्या होगा आपके लिए, आप ट्रेडमार्क हो सकता है दूसरा भी सच्ची.com बनाने की कोशिश करें। तो ये जो कॉपीराइट इश्यूज है, ये इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स के अंडर के पॉलिसी के अंडर में गवर्न होगा। और अगर कोई इसको मैनेज करना चाहता है, अगर कोई इसको अगर इसमें कोई जैसे मान लीजिए सच्ची.com है, सच्ची.info है, दो अलग अलग डोमेन पे काम हो रहे हैं। तो वो इन्फो है, ये .com है। लेकिन अगर किसी इन्फो वाले, अगर मान लीजिए हमको इन्फो चाहिए और उसको .com चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है। इन सब चीजों को बहुत ज्यादा विस्तारण जो है ये ICANN जो है इन चीजों को मैनेज करता है, ठीक है। और इसकी पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन इन्फॉर्म डोमेन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की है। अब आगे देखते हैं कि डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है। ये है उनकी पॉलिसी।
पूरी पॉलिसी है कि पर्पस क्या है, कैसे कैंसिलेशन आप कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है। इसीलिए इतना सारा पेन लेने से अच्छा होता है कि हम किसी डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू अपना डोमेन नेम ले लें, तो इन सब पॉलिसीज को रीड आउट करके और चीज़ों को मैनेज कर लें। ठीक है, अब आप देखिए कि डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। कुछ नहीं भाई, हमको एक डोमेन नेम चाहिए, हम सोचते हैं, फिर अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उसमें डालते हैं, ईमेल इन्फॉर्मेशन, फिजिकल इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, सब कुछ। फिर उसकी बिलिंग होती है, फिर रजिस्ट्रेशन टीम डिजायर्ड डोमेन का रजिस्ट्रेशन करती है। फिर आपको पेमेंट हो इन्फॉर्मेशन देती है कि भाई आपने जो डोमेन नेम सर्विस चुनी है, वो डोमेन नेम सर्विस कहाँ कहाँ उसका पेमेंट मंथली आपको कितना होगा। अब एक काम आता है कि जी भाई डोमेन नेम का ट्रांसफर हो सकता है, तो आप एक रजिस्ट्रार से अनदर रजिस्ट्रार, हो सकता है कि आप होस्ट गेटर पे काम कर रहे हो, आपको बिग रॉक पे उसको प्रपोज करना है, तो आप कर सकते हैं। आप उसकी प्राइसिंग देखिए, डोमेन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट, इतना अगर उसका अच्छा है तो आप उसको कर सकते हैं। और ये फैसिलिटी ऐसी है में अवेलेबल है। ठीक है, आपको आपको ये श्योर करना होता है किसी भी डोमेन सर्विस के 60 दिन तक आपकी जो करंट वेबसाइट है वो डाउन 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 टाइम 7 दिन नहीं होना चाहिए। ईमेल एड्रेस वैलिड होना चाहिए। डोमेन इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय ब्लॉक स्टेटस। ठीक है, रिडम्पशन स्टेटस मतलब क्या होगा कि भाई आप पैसे दे दिए, धीरे धीरे उठ रही होगी। डोमेन इज नॉट कनेक्टेड डिस्प्यूट, डोमेन इज नॉट रिलेटेड। तो इसके लिए भी आप चेंज कर सकते हैं ट्रांसफर क्वेश्चंस @icnn.org, जहाँ पे ट्रांसफर के जो पॉलिसी के अराउंड आपको एक क्या कहते हैं, एक सजेशन बॉक्स है। तो ये पूरी रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी है कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है डोमेन में। तो जो आपके जो कोर्स है ना कि व्हाट इज द रजिस्ट्री डोमेन्स, तो यही है। और डिफाइनिंग नेम सर्वर्स, यही वो प्रोसेस है कि जो हम जो रजिस्ट्रेशन डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन है और उनके सर्वर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जो मुझे आपसे बता रहा हूँ। फिर उसके बाद वही जब हमारे पास रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस और डोमेन नेम सर्विस मिल जाती है, तो फिर हम आ जाते हैं होस्टिंग में। होस्टिंग क्या करता है कि होस्टिंग वजह से हम अपने फाइल एफटीपी फाइल्स को अपलोड करते हैं, मेल अकाउंट बनाते हैं, वेबसाइट बिल्डर टूल से वेबसाइट बनाते हैं और फिर डेटाबेस क्रिएट करते हैं, और इसके थ्रू हम अपनी पूरी वेबसाइट को लॉन्च कर लेते हैं इंटरनेट डोमेन में। ठीक है, तो यू नो होस्टिंग, जो होस्टिंग सर्विसेज हमको क्या क्या प्रोवाइड कराता है जी, वो प्रोवाइड कराता है हमारे हमारे लोग के नाम के हिसाब से। अब जैसे मान लीजिए www.yourwebsite.com है, तो आपके नाम @website.com ये अकाउंट हमको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए www.sachi.com, तो अब हम अपनी जब वेबसाइट बनाएंगे किसी को मेल आईडी और दे सकते हैं www.@ सॉरी मान लीजिए कोई है रिंकू रिंकू@sachi.com, तो ठीक है, वो ईमेल अकाउंट जनरेट कर सकते हैं। एफटीपी एक्सेस आप ना होस्ट प्रोवाइडर आपको देता है। एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, ये हमको अपने फाइल्स को अपलोड करता है लोकल कंप्यूटर से वेब सर्वर में। आप अपने सिस्टम पे कोई इमेज रखें, उसको सर्वर पे इमेज करते हैं। ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, इस मैनेजमेंट को कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये होता कैसे है, किसी पैनल के थ्रू, जिसको हम सी पैनल कहते हैं, जो आपके कोर्स में लिखा है ना यहाँ पे कि कंट्रोल पैनल, क्रिएटिंग ईमेल, सी पैनल, एफटीपी, मेंटेनिंग अ वेबसाइट, ये सब प्रोसेस यही है कि आपको एक सी पैनल मिल जाता है। इस पैनल में आप ईमेल को कर सकते हैं, एफटीपी एक्सेस कर सकते हैं। फिर आप सपोर्ट रहता है क्रिएशन टूल्स का बहुत सारा कि आप अपने हिसाब से अपने वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आइडिया था कि कैसे आप अपने वेबसाइट को मैनेज करते हैं, और ये जो कंटेंट है कि कैसे आप कंट्रोल पैनल। अच्छा, अब आपको दिखाते हैं कंट्रोल। कल अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंट्रोल पैनल के थ्रू इनको पूरा प्रोसेस कैसे करना है। इसकी एक वीडियो है, तो वी विल शो इन लेक्चर and we will understand it much better. Okay, so I think you had little bit understanding about all those concepts in your course. Okay, this web hosting, types of web hosting, registration domains, defining name servers, C panel, कैसे एडमिनिस्ट्रेटर पैनल होता है, और एक जो
यूजर पैनल होता है, ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं, एफटीपी क्लाइंट कैसे करते हैं, वेबसाइट को मैनेज कैसे करते हैं, ये सब एक थोड़ा सा आइडिया आपको वेब होस्टिंग का पूरा मिला होगा कि एक्चुअली में वेब होस्टिंग में पूरा वेब होस्टिंग का प्रोसेस है क्या और इसके स्टेप बाय स्टेप में हम क्या क्या काम करते हैं. तो in case of any issue let me know.